Namaskar. Kalashruta Academy of Performing Arts presents Samrachana 2022, a choreography event which is held every alternate year. This year, the theme of Samrachana is Human Qualities, and our group has chosen human quality, courage. Courage means something more than just valor and strength. It helps us to never give up on something and try our best until we succeed. It also helps us to be determined and focused even when the situation is not in our favor. Courage is not only needed on battlefields, but also when a person needs to face truth or a harsh reality presented before him. Our group has chosen the story of Veera Abhimanyu, who was son of Arjuna and Subhadra. When Subhadra was carrying Abhimanyu in her womb, Arjuna and Lord Krishna were talking about the Chakravyuh wall formation. While they were talking, Subhadra fell asleep. Abhimanyu, as a result, could only learn the way in of the maze and could not learn the way out. After years, when Abhimanyu reached his youth, he had to fight in the Kurukshetra war. On the 13th day of Mahabharata war, Arjun was diverted to the south, and taking advantage of his absence, the Kaurava army formed Chakravyuh. Among the Pandavas, only Arjun knew how to enter the Chakravyuh, break it, and exit out of it. But without his presence, the Kaurava army was creating a huge loss for the Pandavas. As Abhimanyu knew how to enter the Chakravyuh, he went inside, followed by his paternal uncles. But the Pandavas were stopped at the edge of the Chakravyuh and defeated, while Abhimanyu at the same time was trapped in the center of the formation. Though he didn't know how to break the Chakravyuh and probably knew the end outcome of his death, Abhimanyu didn't lose hope and fought valorously till his last breath. And this story of Veer Abhimanyu sets a perfect example for courage. Our group is enacting the same through rhythmic beats and soulful language of dance. The participants of Team Courage are Mishti, Krisha, Swara Tandil, Sanvi Bangera, Sanvi Naik, Biral Shah, Shritul, Swara Jagtap, Asmi, Saili, Sai, Lavanya, Arya, Pankti, Priyal, Sharvari, Nidhi Didi, Arya Sawant, Namrata Dhanisha, and Joisha. Music credits are Music of Horizon Dawns 16 song by Yellow Brick Cinema, Music of Pancham Se Ghara Sitar Vadan by Anushka Shankar, Music of Ekda Ekat song Pakhwaj Vadan, Music of Krishna Manmohana flute tune by Rakesh Chaurasiya, Music of Songs of India DLC for Crusader Kings 2 by Paradox Interactive, Music of End of Silence by Determinated, Music of Arambh Hai Prachanda by Piyush Mishra from movie Gulal, Music of Abhimanyu song by Ajay Gogawale and Atul Gogawale in the TV show Mahabharata. This music is used for dance purposes only. Thank you. अर्जुन पांडु और कुंती के पुत्र थे और सुभद्रा रोहिणी और वासुदेव की पुत्री थी एवं श्री कृष्ण की बहन भी थी। एक दिन सुभद्रा की नजर एक पोटली पर गई जिसमें काल्यवन की आत्मा बंधी थी। उत्सुकतावश सुभद्रा ने उस पोटली को खोल दिया और काल्यवन की आत्मा सुभद्रा के गर्भ में समा गई। यही काल्यवन भगवान श्री कृष्ण का भांजा अभिमन्यु हुआ। अर्जुन
और सुभद्रा जो गर्भवती है आपस में बात करते हुए अंदर आए और उन्होंने अपना आसन ग्रहण कर लिया। बात करते हुए अर्जुन अपनी पत्नी को चक्रव्यूह युद्ध के बारे में बताते हैं। सैन्य रणनीति के अनुसार गठन दो सैनिकों के एक दूसरे के पीछे खड़े होने के साथ शुरू होता है। ऐसे अन्य सैनिकों के 3 हाथों की दूरी पर खड़े होते हैं, 7 मंडलियां बनाते हैं और अंत में समाप्त होते हैं, जहां कब्जा की हुई वस्तु रखी जाती है। तैनात किए जाने वाले सैनिकों की संख्या और चक्रव्यूह के आकार की गणना प्रतिरोधक के अनुसार की जाती है। एक बार खींचे जाने के बाद सबसे प्रमुख सैनिक प्रतिद्वंदी के दोनों ओर आकर कब्जा करने के लिए आते हैं, संक्षेप में व्यस्त होते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उनका स्थान दोनों ओर के अगले सैनिकों द्वारा लिया जाता है, जो फिर से प्रतिद्वंदी को संक्षेप में व्यस्त करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस गठन में कई सैनिक दुश्मन को पार करते हैं और गोलाकार आकृति में आगे बढ़ते हैं जब तक गठन का पिछला भाग आता है। बात के बीच में ही सुभद्रा सो गई, इसलिए अभिमन्यु जो अपनी माता के गर्भ में था, उन्होंने चक्रव्यूह के बारे में आधा ज्ञान ही प्राप्त किया और चक्रव्यूह को तोड़ने और इससे बाहर आने के उपाय के बारे में उन्होंने नहीं सुना। कुछ महीनों बाद अभिमन्यु का जन्म हुआ और परिवार में उनका फूलों की बारिश के साथ स्वागत किया गया। अभिमन्यु थोड़े बड़े हुए और अपने दोस्तों के साथ शस्त्र और शास्त्र का अभ्यास शुरू किया, जिसमें उनको बहुत सफलता प्राप्त हुई। सिर्फ 16 साल की उम्र में वे मुख्य कुरुक्षेत्र के युद्ध के लिए जा रहे हैं। सैनिक कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और सारी तैयारी होने पर अभिमन्यु, पांडव और सभी सैनिक युद्ध के लिए निकल पड़े। विजय तो कभी कभी कायरों को भी प्राप्त हो जाती है, किंतु यश और कीर्ति सदा ही शूर वीरों को मिलती है। मेरा आशीर्वाद है कि इस रण में तुम्हें ऐसी कीर्ति मिले कि तुम सदा के लिए अमर हो जाओ। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो।
आरंभ है प्रचंड। करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो, या कि केसरी हो ताल, तुम ये सोच लो। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा का सम्मान न मुझे प्राप्त होगा न अर्जुन को। वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया है पुत्र। तलवार थी, वीर की ललकार थी, ज्वाला थी तृप्त रक्त